Assalamu alaikum and welcome to Reality Check, a show where we go beyond headlines. We pause, zoom out और वो बातें एक्सप्लोर करते हैं जो आम तौर पर शोर में कहीं खो जाती हैं। आज हम दो कहानियां एक्सप्लोर करने वाले हैं और दोनों एक ही थीम पर मिलती हैं और वो है पावर। एक तरफ इमाद वसीम की लीगल और पर्सनल बैटल, सोशल मीडिया के एलिगेशंस, लीगल नोटिसेस और पब्लिक ओपिनियन का प्रेशर। क्या ये सच है या सिर्फ एक नैरेटिव कंट्रोल का खेल? दूसरी तरफ है साउथ एशिया की एरोस्पेस रेस। पाकिस्तान का JF-17 थंडर तेजी से एक्सपोर्ट और ऑपरेशनल अपग्रेड्स के साथ, और इंडिया का हल तेजस एम्बिशियस तो है लेकिन डेवलपमेंट और टेक्निकल चैलेंजेस के साथ। एक स्टोरी रेपुटेशन और राइट्स की है, जबकि दूसरी स्टोरी स्ट्रेटेजी और डोमिनेंस की। तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम समझेंगे कि दोनों फ्रंट्स पर सच्चाई और परसेप्शन के बीच का फर्क। Imad Wasim's legal move sparks debate after explosive claims by ex-wife. Imad Wasim sends a legal notice after shocking allegations, but critics say the cricketer is trying to flip the narrative. क्या यहाँ कुछ और कहानी है या दिखाया कुछ और जा रहा है, या फिर सोशल मीडिया पर वही पुरानी कहावत सच हो रही है, उल्टा चोर को तवाल को डांटे। फेमस पाकिस्तानी क्रिकेटर इमाद वसीम has landed in a new controversy. This time, the matter is not just personal but has also taken a legal turn. It all began when he announced his second marriage with Naila Raja. He said the decision was made after the careful thought. According to him, it was taken to build a life based on peace, stability and mutual respect. लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद उनकी एक्स वाइफ सानिया अशफाक ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने इमाद पर ये इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनका घर तोड़ दिया है और बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। यहीं से कंट्रोवर्सी और भी गहरी हो गई। सानिया अशफाक ने भी ये एलिगेशन लगाया कि उन पर फोर्स्ड अबॉर्शन और इनफिडेलिटी का प्रेशर था। सोशल मीडिया पर ये क्लेम्स तेजी से वायरल हो गए एंड ही हैज सेंट अ लीगल नोटिस टू हिज former wife Sania Ashfaq. Now, Imad's lawyer Alia Zareen Abbasi shared a video statement on X rejecting all these allegations and calling them baseless. She said medical records have been obtained which confirm that the claim of forced miscarriage is incorrect. The lawyer also stated the decision to travel to United States in November 2023 for an international tournament was made with mutual understanding. According to her, the doctors involved at the time can also verify this. She further added in the statement that the full documentation of Imad Wasim's tour to UAE, Australia, and England during November 2023 has been secured. These records will be presented in the court as evidence. Responding to the allegation of infidelity, the lawyer said the couple separated in November 2024 due to personal differences. उस वक्त सानिया प्रेग्नेंट थी और जुलाई 2025 में उनका बेटा पैदा हुआ था। लॉयर का कहना है कि इमाद वसीम अभी भी तीनों बच्चों के तमाम खर्चे उठाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग इस कहानी को मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। कुछ यूजर्स का कहना है कि एक लीगल नोटिस भेजना एक डिफेंसिव मूव है, और कुछ का कहना है कि शायद नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। यानी सवाल अब भी वही है, क्या इस सच में सफाई है या फिर ये डैमेज कंट्रोल है? क्या इमाद वसीम हकीकत बता रहे हैं या विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? अब इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी, और शायद वक्त भी। Pakistan's JF-17 gains export momentum while Tejas faces growing questions. Pakistan's JF-17 Thunder is expanding globally with multiple export deals, while India's Hull Tejas continues to face developmental and operational scrutiny. The contrast highlights two very different aerospace strategies in South Asia. क्या साउथ एशिया का एयर पावर रेस में गेम चेंज हो रहा है? एक तरफ तेजी से एक्सपोर्ट होता फाइटर जेट, जबकि दूसरी तरफ डेवलपमेंट के चैलेंजेस। In South Asia's defense aviation landscape, two indigenous fighter programs are telling very different stories. On one side is Pakistan's JF-17 Thunder, on the other is India's Hull Tejas. So the question is, क्या पाकिस्तान का मॉडल ज़्यादा सक्सेसफुल नज़र आ रहा है?
पाकिस्तान ने JF-17 को सिर्फ अपनी एयरफोर्स तक महदूद नहीं रखा, इसे एक एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना दिया है। मल्टीपल वेरिएंट्स हैव ऑलरेडी बीन इंडक्टेड इनटू द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द एडवांस्ड Block 3 configuration is now operational. Pakistan has also secured export deals with Nigeria, Myanmar और अब अज़रबैजान के साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो चुका है। डिफेंस एनालिस्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा है: अफोर्डेबल फाइटर, अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी और फ्लेक्सिबल पार्टनरशिप्स। अगर आसान लफ्जों में कहा जाए तो countries that want modern capabilities but cannot afford expensive Western jets finds the JF-17 as an attractive option. However, on the other hand, India's Hull Tejas is an ambitious indigenous project, but it has faced development delays and technical refinements. 2024, 2025 और फिर 2026 में भी तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की सेफ्टी पर सवालात उठने लगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अर्ली फेज फाइटर प्रोग्राम्स में इंसिडेंट्स अनयूजुअल नहीं होते, मगर रिपीटेड इश्यूज ऑपरेशनल क्वेश्चंस जरूर खड़े करते हैं। स्ट्रेटेजिकली बोथ कंट्रीज आर टेकिंग वेरी डिफरेंट अप्रोचेस. Pakistan is focusing on exports while India is concentrating on domestic capability and technological independence. In other words, Pakistan is building quick export momentum, whereas India is developing a long-term industrial ecosystem. तो साउथ एशिया की एरोस्पेस रेस में पिक्चर इंटरेस्टिंग होती जा रही है। एक तरफ पाकिस्तान का JF-17 थंडर जो एक्सपोर्ट मोमेंटम और इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स को बिल्ड कर रहा है, और दूसरी तरफ इंडिया का हल तेजस जो अभी भी टेक्नोलॉजिकल जर्नी को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के एपिसोड ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आई एम रमना सईद साइनिंग ऑफ फ्रॉम रियलिटी चेक, वेयर फैक्ट्स कट थ्रू द नॉइज। कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।